good morning, my dear student. Today we will continue your class 11th history chapter Nomadic Empire. In this chapter, we were discussed about the topic social, political, and military organization. In that topic, we have talked about that the military organization, that the Mongols military organization was based on decimal system, and there are so many ethnic groups. They have given their duties by Genghis Khan without any discrimination. We have also discussed about that distribution of their whole empire in their successors. We read also the social conditions. The Mongols, as we know that they were herders, they were wanderers one place to other place, they were nomadic life living in that time, and no doubt to say that their condition was very difficult. The climatic season, the geographical condition also give them that condition for the survival of the nature they have to do. And we also discuss about that their economy and their economic activities. We have talked about economic system where the Mongols, they were in two groups. First, they were living their life on the pastoralism. Pastoralist industry was the main occupation for them. And second, they were hunter and gatherer society. They looted traders. And what was the relation between the China also we have discussed in my previous video. Today we will start this paragraph and we will continue that what is author want to explain further. The gradual separation of the descendant of Genghis Khan into separate lineage group implied that their connections with the memory and traditions of the past family, the concordance also alerted at an obvious level. This was the result of the competition amongst the cousin clans, and here too Toluyud branch was more adept in the separating their version of the family. Disagreements in the histories produced under their patronage. To the large extent, this was a consequences under their patronage. To the large extent, this was consequence of their control of China and Iran and the large number of the literary level. The disengagement with the past also meant underlying the merits of the resonant rulers as a control to other past the monarchs. These exercises in the comparison did not exclude Genghis Khan himself. The Persian chronicles produced in Second Khanid Iran during the late 13th century detained the glory killing of the great Khan and exaggerated the number of killed. For example, in the contrast to the eyewitness report that the 400 soldiers defended that the cities of the Bukhara, and Second Khanid chronicles reported that 30,000 soldiers were killed in the attack on the citadel. Although Second Khanid reports still eulogized Genghis Khan, they also carried a statement of the relief that time had changed and the great killing of the past were over. The Genghis Khan's legacy was important, but for his descendant to appear as convincing heroes as
sedimentary audience, they could no longer appear in quite the same way as their ancestors. Dear student, in this paragraph, author want to clarify about the past condition of the Mongols. author आपको बताना चाहता है कि चंगेज खान के वंशजों का धीरे धीरे अलग होकर छोटे छोटे समूहों में बट जाने का तात्पर्य था कि उनके परिवार से उनकी जो ट्रेडिशंस थी, उनकी स्मृतियां जो थी और जो परंपराओं में जो बदलाव हो रहा था वो क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा था, शो कर रहा था। परिवार छोटे छोटे ग्रुप में बट गया, मंगोल्स फैमिली के ट्रेडिशंस और जो फेथ बिलीव्स थी उसमें बदलाव आया और ये चीज़ें मंगोल्स ट्रेडिशंस के लिए अच्छी नहीं मानी जाती इतिहास में। क्लियर है कि यह सब एक कुल के सदस्यों, एक क्लैंस के सदस्यों में परस्पर प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन के फलस्वरूप हुआ। वी हैव रीड इन द प्रीवियस पैराग्राफ दैट द मंगोल्स फैमिली they were not focused to expand their boundary. About that time, they were conflicted each other to show their power. अपने को अधिक शक्तिशाली दिखाने की होड़ उनकी मच गई थी और ये चीज़ें मंगोलों के अगेंस्ट थी। परिवार के लोग आपस में ही लड़ने लगे। डिस्प्यूट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग, दैट इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ द मंगोल फैमिली। Even Genghis Khan clearly distributed their whole empire into their son. But what happened? What was the result? Empire was sustained a long time? I hope no. The condition was very dull. That's why author inform you कि छोटे छोटे ग्रुप में बढ़ जाना. In the small groups they divided and their traditions, their beliefs, it has completely changed. इस क्लान के छोटे छोटे क्यों हुआ? वाई इट हैपन? बिकॉज ऑफ द कंपटीशन बिटवीन ईच अदर, एक दूसरे के बीच की प्रतिस्पर्धा के कारण। ये प्रतिस्पर्धा क्लान के सदस्यों के परिणाम स्वरूप हुआ और इसी की एक शाखा जो तोलुइद ने अपने पारिवारिक मतभेदों का वृत्तांत बड़ी निपुणता से, तोलुइद वंश के लोगों ने जो कन्फ्लिक्ट थे आपस के, उनको बड़ी ही निपुणता के साथ अपने संरक्षण में प्रस्तुत किए जा रहे इतिहासों में दिया। उन्होंने बताया कि कन्फ्लिक्ट कहाँ थे। यह सब चीन और ईरान पर उनके नियंत्रण का और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा बहुत बड़ी संख्या में विद्वानों को अपने यहाँ भर्ती करने का परिणाम था। अगर स्पष्ट रूप से कहें तो ये कहा जा सकता है कि अतीत जो पास्ट से अलग होने का मतलब था पिछले शासकों की अपेक्षा जो प्रचलित शासकों के गुण को अधिक लोकप्रिय बनाना था। तुलना की इस प्रक्रिया में स्वयं को चंगेज खान को भी नहीं छोड़ा गया। अपनी तुलना उन्होंने चंगेज खान तक से कर डाली। वी आर सुपीरियर इन चंगेज खान। वाई? बिकॉज चंगेज खान वॉज वेरी ब्रूटल टू एस्टेब्लिश देयर एम्पायर, बट वी आर वेरी लिबरल। हम अपने लोगों के लिए पूरा ध्यान रखते हैं। इन्होंने चंगेज खान तक को नहीं छोड़ा। इल्खानी ईरान में 13वीं सेंचुरी, 13वीं सदी में आखिर में 13वीं सेंचुरी के लास्ट तक फारसी जो इतिहास लिखे गए उसे महान खानों के द्वारा दी गई रक्त रंजित हत्याओं का विस्तृत वर्णन है। इट मीन्स द गोरी किलिंग detained the gory killing of the great Khans and they greatly exaggerated the number of the killed for the examples. In a contrast, an eyewitness report, 400 soldiers defended the citadel of the Bukhara, and second chronicles reported that 30,000 soldiers were killed to attack on the citadel. क्लियर कह रहा है कि 400 सैनिक जो चश्मदीद गवाह के रूप में इस विवरण का विरोध कर रहे थे, बुखारा के किले की रक्षा के लिए 400 सैनिक तैनात थे। एक इल्खानी इतिहासविद में यह विवरण दिया गया है कि बुखारा के किले पर हुए आक्रमण में 30,000 सैनिक मारे गए। इवन इल्खानी के विवरणों में इल्खानी के जो डिस्क्रिप्शंस थे, जो उन्होंने लिखा था, उसमें अभी भी चंगेज खान की प्रशंसा की जाती थी।
लेकिन उसमें साथ ही तसल्ली बख्श यह कथन भी दिया जाने लगा कि समय बदल गया है और अब पहले जैसा खून खराबा समाप्त हो चुका था। चंगेज खान के वंशजों को विरासत में जो कुछ भी मिला वो महत्वपूर्ण था। इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट विच दे ऑब्टेन फ्रॉम एज ए पैटर्नल प्रॉपर्टी फ्रॉम चंगेज खान। लेकिन उनके सामने एक समस्या थी। इट वॉज द ग्रेट चैलेंज फ्रंट ऑफ देम दैट हाउ कैन दे मैनेज देयर एम्पायर। और अब उन्हें एक स्थानबद्ध समाज में एक धाक जमानी थी और इससे बदले हुए समाज में वे वीरता की एक तस्वीर नहीं पेश कर सकते थे जैसे चंगेज खान ने की थी। दे हैव टू चेंज देयर पॉलिसी, सो दैट्स व्हाई देयर अप्रोच, देयर इकोनॉमिक सिस्टम, देयर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, देयर ब्रूटल पॉलिसी, एवरीथिंग हैज चेंज। बिकॉज वो इस बात को इस तरीके से प्रूव करना चाहते थे कि ये समय की मांग है, इट इज डिमांड ऑफ द टाइम, वी हैव टू चेंज आवरसेल्फ, हमें अपने को बदलना पड़ेगा। फॉलोइंग द रिसर्च ऑफ द डेविड आइलैंड्स रिसेंट वर्क ऑन द यसा द कोड ऑफ लॉ द गंगेजी खान वाज सपोज्ड टू हैव द प्रोलॉन्ड एट द करतलाई ऑफ द 1206 हैज elaborated on the complex way in which the memory of the great Khan was fashioned by his successors. In its earliest formulations, the term was written as yasa, which meant law, a decree of order. Indeed, the few details that we posed about the yasa concern the administrative regulations. The organizations of the hunt, the army and the postal system. By the middle of the 13th century, however, the Mongols had started using the related term yasa in the more general sense to mean the legal code of the Gangezi Khan. This is the very important information which was based on David Allen's study. David Allen के रिसर्च के आधार पे यसा की बात क्लियर हुई। व्हाट वाज यसा? यसा क्या था? डेविड एलन ने बताया कि ये एक नियम थी, कोड ऑफ कंडक्ट था, रूल्स थे, जिसके बारे में कहा जाता था कि चंगेज खान ने 1206 में कलिलतई में इसे लागू किया और लागू करने के लिए अपने सक्सेसर्स को, अपने उत्तराधिकारियों को इसके लिए आदेशित किया और उनके उत्तराधिकारियों ने भी इसे प्रयुक्त किया। इस यसा के नियम को उन्होंने स्टेब्लिश किया। 1206 में कलितरे की लागू की थी। इन जटिल विधियों का विस्तृत वर्णन करता है जो महान खान की स्मृति में बनाए रखने के लिए उनके उत्तराधिकारियों ने नियुक्त किया था। अपने प्रारंभिक स्वरूप में यसा को यसाक लिखा जाता है, YASAQ. It means the formulation, the term was written as a yasak, which meant law. इसका मतलब हुआ कानून, डिक्री और ऑर्डर, जिसका अर्थ है विधि, आज्ञप्ति या आदेश। और ये आदेश किसने स्टेब्लिश किया? नो डाउट टू से दैट दिस रूल्स, दिस कोड ऑफ कंडक्ट वाज स्टेब्लिश बाई गंगेजी खान। कुरिलतई को चलाने के लिए, उस समूह को चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को चलाने के लिए उसने यसास का निर्माण कराया। अपने प्रारंभिक स्वरूप में यसा को आज्ञप्ति या आदेश लिखा जाता था। वास्तव में जो थोड़ा बहुत विवरण यसाक के बारे में हमें मिलता है उसका संबंध प्रशासनिक जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस थे, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हंट, द आर्मी एंड पोस्टल सिस्टम, यसास से जो हमें सूचना मिलती है वो वी प्रोसेस अबाउट द यसास कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हंट, द आर्मी ऑफ द पोस्टल सिस्टम। पोस्टल सिस्टम के बारे में सूचना, प्रशासन के बारे में सूचना, प्रशासन को किस तरह से चलाया जाए इसके बारे में जो नियम, ये चीज़ें जो हमें यसा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है उनमें इन चीज़ों की डिटेल किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। प्रशासनिक बुनियों में आखेट, सैन्य और डाक प्रणाली का संगठन, इन चीज़ों के बारे में क्लियर बताया गया है। 13वीं सेंचुरी की मध्य तक किसी तरह से मंगोलों ने
यास शब्द का प्रयोग ज़्यादा सामान्य रूप से करना शुरू कर दिया। इसका मतलब था चंगेज खान की विधि संहिता। यास in a more general sense to mean that legal code of Gangezi Khan. We may be able to understand the change in the meaning of the term if we take a look at some of the other development that occurred at the same time. By the middle of the 13th century, Mongols had emerged as unified people and just create the largest empire in the world had ever seen. यदि हम इसमें घटने वाली अन्य घटनाओं की ओर देखें तो शायद हम इस शब्द के अर्थ में होने वाले परिवर्तनों को समझ सकते हैं। 13th सेंचुरी के मध्य तक मंगोल ने एक एकीकृत जनसमूह के रूप में उभर कर सामने आए, एक पावरफुल कम्युनिटी के रूप में उभर कर सामने आए। यूनिफाइड पीपुल्स के रूप में इमर्ज्ड एज ए यूनिफाइड पीपुल, मंगोल्स हैड इमर्ज्ड एज ए यूनिफाइड, एक संगठित रूप में वो सामने आए और उन्होंने एक ऐसे विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ऑल्दो द मंगोल्स dominated the region politically, they were the numerically minority, the one way in which they could protect their identity and the distinctiveness was through the claim to sacred law given to them by their ancestors. Dayasa was in all probability of the completion of the customary traditions of the Mongol tribes, but the referring it the Gangezi Khan's code of law, the Mongol people also laid claim to lawgiver like Moses, the Solomons, whose authoritative code could be imposed on their subject. Jasa served to choice of the Mongols people around a body of the shared beliefs. It acknowledged their affinity of the Gangezi Khan and his descendant, and even as they absorbed the different aspect of the sedentary lifestyle, gave them and confidence to retain their ethnic identity and impose their law upon their defeated subject. It was an extremely the empowering ideology, and although Gangezi Khan may not have planned such as a legal code, it was certainly inspired by his vision and was vital in the constructions of the Mongol universal dominion. That is the very important things. मंगोलों ने अपने साम्राज्य को क्षेत्रों को राजनीतिक प्रभुत्व बनाए रखा, फिर भी संख्यात्मक रूप में वो अल्पसंख्यक थे, कम थे, माइनॉरिटी में थे। इसके लिए अपनी पहचान और विशिष्टता की रक्षा का एकमात्र उपाय था, अपने स्पेशलिटी और अपनी सिक्योरिटी का एक सबसे अच्छा तरीका था उनके लिए, वो था इस बात की पूरी संभावना रखी जाए कि अपने दावे को किस तरीके से अपने पूर्वजों तक सुरक्षित रखा जाए, मतलब बाद के आने की जनरेशन तक वो अपने मंगोल ट्रेडिशंस को बना के रखें। चंगेज खान की जो यास थी, विधि संहिता थी, इस बात की पूरी संभावना थी कि यास मंगोल जनजाति की ही प्रथागत परंपराओं का एक संकलन है। यास जो उनका कोड ऑफ कंडक्ट था, उनके ट्रेडिशनल्स जो कंडीशंस थी, जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थी, उन्हीं को कलेक्ट करके एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया था। किंतु उसे चंगेज खान की विधि संहिता कहकर मंगोलों ने भी मूसा और सोलोमन की ही भांति अपने को एक स्मृतिकार होने का दावा किया, अपने को एक कानूनविद या कानून निर्माता होने का दावा किया। उन्होंने तुलना की, जिस प्रकार मूसा ने कानून बनाए, जिस प्रकार सोलोमन ने कानून बनाए, उसी तरीके से सुलेमान ने कानून, उस तरह से चंगेज ने भी यसा के कानून बनाए, नियम बनाए, यसास पे अपने रूल्स सेट किए। यास मंगोलों के समान आस्था रखने वाले लोगों के आधार पर संयुक्त करने में सफल हुआ। यास दैट वाज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज पीपुल, दे यूनाइट ऑन द बेसिस ऑफ दिस रूल, दिस कोड ऑफ कंडक्ट। यास प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल to reunite their whole empire
ऑन द नेम ऑफ द गंगेजी खान, चंगेज खान। चंगेज खान के नाम पे, यसा के आधार पे अपने लोगों को संगठित करने का एक सबसे अच्छा उदाहरण था ये। चंगेज खान उनके वंशजों से मंगोलों की निकटता को स्वीकार किया, यद्यपि मंगोलों ने भी काफ़ी हद तक इस बात के प्रति अवेयर थे कि उन्हें किस तरीके से अपने को यूनाइट रखना है, अपने को ये ट्रांसफरेबल जो उनकी लाइफ स्टाइल्स थी उनको विभिन्न पलों को अपना लिया था। फिर भी यास उनको अपनी कबीलाई पहचान बनाए रखने के लिए, यास उनको अपनी पुरानी परंपराओं को बनाए रखने के लिए, अपने नियमों को उन पराजित लोगों पर लागू करने के लिए एक उनको कॉन्फिडेंस देता था। इट मीन्स इन इजी वर्ड, if I want to explain this, the Yas that was the very important rule, very important things for the Mongol. What? To prove that we are the superior on those people they were defeated by them, जिनको उन्होंने हराया और उनके ऊपर इस कानून को लागू करके अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का जो उन्होंने प्रयास किया वो सिद्ध करता है। यास एक बहुत ही सशक्त विचारधारा थी, जो इज अ वेरी पावरफुल आइडियोलॉजी, empowering ideology, extremely empowering ideology, and although the Gangezi Khan may not have planned such as a legal code, हो सकता है कि चंगेज खान ने इस विधि का कोई योजना पहले से न बनाई हो, लेकिन यह निश्चित रूप से उसकी कल्पना शक्ति से प्रेरित थी, जिसने वर्ल्ड वाइड लेवल पे मंगोल राज की संरचना में अहम भूमिका निभाई। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू अंडरस्टैंड। We will discuss what is the meaning of Yasa. Yasa. What is Yasa? Dear student, as you know that Yasa, that was code of conduct, that was rules, that was law, which was set up by the Changez Khan. Yasa, it is clear, given in your book. In 1221, after the conquest of Bukhara, Gangezi Khan had assembled the rich Muslim residents at the festival ground and had admonished them. He called them sinner and warned them to compensate for their sin by parting with their hidden wealth. The episode was dramatic enough to be painted, and for a long time afterward, people still remembered the incidents. In the late 16th century, Abdullah Khan, a distant descendant of Jochi, Gangezi Khan's eldest son, went to the same festival ground in Bukhara. Unlike Gangezi Khan, however, Abdullah Khan went to perform his holiday prayer there. His counselors, Hafiz Tanis, reported this performance of Muslim piety by the master and include the surprising comments. This was according to the Yasa of Gangezi Khan. It means in this paragraph, you will see that there is the vast difference between the Changez Khan's Yasa and their ancestors Yasa. दोनों के यसा की मीनिंग्स बदल गए, चेंज हो गए। अब कहता है कि इन 1221 बुखारा पर विजय प्राप्त करने के बाद चंगेज खान ने वहाँ के अमीर मुसलमान निवासियों को एक फेस्टिवल के मैदान में एक ऐसे रेजिडेंट ऑफ द फेस्टिवल ग्राउंड, फेस्टिवल उत्सव मैदान में एकत्रित कर उनकी भर्त्सना की। उसने उनको पापी कहा, सिनर कहा, और कहा, उनको चेतावनी दी कि इन पापों के प्रायश्चित को अपना छिपा हुआ धन निकाल कर देकर वो अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं। इट मीन्स Changez Khan clearly instructed them that you are all sinner. You have a lot of wealth which was collected by
द वेरी बैड मैनर्स, इट शो योर करप्शन। तो आपको क्या करना है? उन्होंने कहा कि आप जितने लोग हैं सभी लोग अपने धन को यहाँ निकाल के दे दीजिए और अपने पापों के प्रायश्चित करिए। यह वर्णन करने योग्य एक नाटकीय घटना। ऑफ कोर्स दिस इज अ वेरी ड्रामेटिक एनफ टू बी पेंटेड फॉर लॉन्ग टाइम आफ्टर आवर पीपल स्टिल रिमेंबर्ड द इंसिडेंट्स। निश्चित रूप से एक ड्रामेटिक है कि किस तरह चंगेज खान ये कहता है कि आप उन चीज़ों को समझिए, उन चीज़ों को जिसमें चंगेज खान बुखारा के लोगों को, बुखारा के धनी व्यापारियों से ये बात कहता है कि आप लोग अपने जो इलीगल वेल्थ हैं, धन है, उनको बाहर निकालिए, नहीं तो ये आपके पाप हैं और इस पाप के लिए आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। लेकिन बाद में आप देखें तो ये वर्णन करने योग्य एक नाटकीय घटना भले ही लगेगी, लेकिन ये लंबे समय तक इस रूप में याद रखा गया। 16वीं सेंचुरी के अंत तक चंगेज खान के सबसे बड़े पुत्र जोची का एक दूसरे का वंशज अब्दुल्ला खान बुखारा के उसी मैदान में गया। चंगेज खान का एक सक्सेसर था अब्दुल्ला खान, बुखारा के उसी मैदान में गया। चंगेज खान के विपरीत अब्दुल्ला खान ने वहाँ छुट्टी की नमाज अदा किया और फिर इतिहासकार हफीज ए तनीस ने अपने स्वामी की इस मुस्लिम धर्म परायणता का विवरण अपने रिपोर्ट में किया, अपने इतिवृत्त में किया। और वो कहते हैं क्या कि मुस्लिम धर्म परायणता का विवरण सबको चौंका देता था। वो कहते हैं कि चंगेज खान के अनुसार ऐसा यही है। अब्दुल्ला खान की नमाज पढ़ने की जो स्थिति है उसको उस समय के इतिहासकार हफीज ए तनीस कहते हैं कि यही चंगेज खान का ऐसा है। क्या ऐसा था? नहीं। अगर आप ऊपर की लाइनों को ध्यान से पढ़े तो चंगेज खान बुखारा के मैदान पे 1221 में जाता है और वो बुखारा के लोगों से कहता है कि तुम लोगों के पास जो अनर्गल पैसे इकट्ठे हैं ये तुम लोग का पाप है, तुम लोग इसे बाहर निकालो, हमें दे दो और तब तुम्हें अपने पापों के प्रायश्चित करने में मदद मिलेगी। नहीं तो फिर मैं आई एम द रेथ ऑफ गॉड, मैं भगवान का क्रोध हूँ तुम लोगों के लिए, आई विल पनिश यू, मैं आपको दंडित करूँगा। लेकिन जस्ट अपोजिट उसके एक सक्सेसर अब्दुल्ला खान के द्वारा आप जो जोची गंगेजी खान का एल्डेस्ट सन था उसके वंश से था, ने बुखारा में जा करके 16वीं सदी में नमाज अदा की और नमाज को ही ऐसा बता दिया गया। इट इज़ वेरी डिफरेंट, इट इज़ obviously it is very different. So that's why we have to understand what is the meaning of ऐसा। Conclusion of the situating Gangeji Khans and the Mongols in world history. When we remember the Gangeji Khan, today the only image that appear in our imagination are those of the conqueror, the destroyer of cities and the individuals who was responsible for the death of thousands of people. Many 13th century residents of town in China, Iran and Eastern Europe looked at the hordes from the steppe with the fear and disgust. And yet for the Mongols, Gangeji Khan was the greatest leader for all time. He united the Mongols people, freed them from interminable tribal war of the Chinese exploitations, brought them prosperity, fashioned a the transitional empire and restored trade route and markets that attracted distant travelers like the Venetian Marco Polo. The contrasting images are not simply the case of dissimilar perspective. They should make us pause and reflect on the dominant perspective can completely ears all the others. My dear student, आज तक चंगेज खान को हम जिस रूप में याद करते हैं, according to European historians, he was barbarian, he was uncivilized. I have already discussed the history, the resource of history to understand the Mongol, where I have discussed कि किस तरीके से यूरोपियन हिस्टोरियंस मंगोलों के इतिहास को बड़े ही गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं।
आज हम चंगेज खान को याद करते हैं तो हमारी कल्पना में ऐसी तस्वीर आती है जैसे कि एक विजेता, नगरों को ध्वस्त करने वाला और एक ऐसे व्यक्ति का जो हजारों लोगों की मृत्यु का उत्तरदायी है, हजारों लोगों को मारने वाला है। 13वीं सेंचुरी के चीन, ईरान और पूर्वी यूरोप के नगरवासी स्टेपी के इन गिरोहों को भय और घृणा के दृश्य देखते थे। फिर भी मंगोलों के लिए चंगेज खान अब तक का सबसे महान शासक था। उसने मंगोलों को संगठित किया, लंबे समय से चली आ रही कबीलाई लड़ाइयों और चीनियों को उनके शोषण से मुक्त कराया और इस तरीके से उसने एक शानदार इंटरकॉन्टिनेंट एम्पायर की स्थापना की, व्यापार के रास्तों और बाजारों को पुनर्स्थापित किया, जिसको वेनिस के मार्को पोलो की तरह दूर के यात्री आकृष्ट हुए। चंगेज खान के परस्पर विरोधी चित्रणों के कारण एकमात्र परिप्रेक्ष्य के भिन्न नहीं है। ये कॉन्फ्लिक्टेड मैटर, अगर आप इन चीज़ों को देखें तो एक ऐसा शासक जिसने बड़े बड़े साम्राज्य की स्थापना की, बड़े साम्राज्य की स्थापना की, व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा प्रदान की, वेरियस एथनिक ग्रुप्स को रीयूनाइट किया, एक बड़ी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की, चाइनीज के एक्सप्लॉयटेशन से मंगोलों को मुक्त कराया। इतना सब करने वाला चंगेज खान क्या बारबेरियंस था? ऑब्वियसली नो, नहीं था। अब चंगेज खान के इन परस्पर विरोधी चित्रों का कारण एकमात्र परिप्रेक्ष्य की भिन्नता नहीं, बल्कि ये विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि किस तरह से एक दृष्टिकोण अन्य को पूरी तरीके से मिटा देता है। किस तरीके से यूरोपियन हिस्टोरियंस के डिटेल्स हमें उन सारी चीज़ों को समझने में मिसकन्फ्यूज करता है। दैट इज द वेरी इंटरेस्टिंग मैटर। इस तरीके से अगर आप देखें तो बियॉन्ड द ओपिनियन ऑफ द डिप्यूटेड, द sedentary people considered for the moment of sheer size of the Mongol dominance in the 13th century, and the diverse body of the people and faith that it embraced, although the Mongol Khans themselves belonged to a variety of different faith, Shamans, Buddhist, Christian, eventually Islam. They never let their personal belief dictate the public policy. स्थानबद्ध पराजित लोगों को की सोच से परे 13वीं सेंचुरी तक छोटे मंगोल अधिराज्य के बारे में सोचिए, छोटे छोटे वर्गों के बारे में सोचिए, यहाँ विभिन्न मतों के लोग थे। कोई मुस्लिम्स था, कोई क्रिश्चियंस था, कोई बौद्ध था, कोई पारसी था, और इस तरह के लोग समन थे। सार्वजनिक नीतियों पर इन्होंने कभी भी अपने व्यक्तिगत मत को, अपने पर्सनल फेथ को, अपने पर्सनल बिलीव को, अपने पर्सनल रिलीजन को इनके ऊपर थोपा नहीं। मंगोल शासकों ने सब जातियों और धर्मों के लोगों को अपने यहाँ प्रशासकों और हथियारबंद सैन्य दलों के रूप में भर्ती किया, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के रूप में रीयूनाइट किया। सबसे महत्वपूर्ण बात उनकी ये थी, और यहीं से इनका शासन बहुजातीय, बहुभाषी, बहुधार्मिक हो जाती है। इतिहासकार जब इन विविधता का अध्ययन करने लगते हैं, इस बात से मंगोल की पूरी शासन प्रणालियों को अनुसरण करने के लिए एक आदर्श के रूप में इतिहास में हम समझ सकते हैं, जो सेकुलरिज्म बेस पे थी, धर्मनिरपेक्ष आधार पर शासन किया गया था। ये अपने में थी। इस तरीके से इस पैराग्राफ को, कंक्लूजन को आप देखिए और आप इन चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मंगोल्स एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशंस, व्हिच टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन they implemented on their empire. Are they secular? Are they biased? You have to clarify having read this chapter. तो इस तरीके से आज ये चैप्टर यहीं तक, नेक्स्ट चैप्टर में फिर बात करेंगे। इनकी कुछ चीज़ों को मैं आपके लिए एक पैराग्राफ छोड़ रहा हूँ। यू हैव टू रीड एंड यू हैव टू कंसिडर अबाउट दैट व्हाट इज द वाई मंगोल्स वर कॉल्ड बारबेरियंस और मंगोल्स वर आइडियल लीडर्स। You have to decide. Having read the conclusion, I have concluded this paragraph in short. Okay, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। गुड बाय एंड टेक केयर।